हेलो।
Hello, am I audible to all of you? Someone please confirm. Yes, sir. Okay. Is the copy visible? Yes, sir. Okay. Yeah, we ended right here. We will continue from this. The last class we did open loop control system and closed loop control system. Basically, the basic theory, basic definitions, examples, basic block models, etc., and how to perform those in MATLAB. Today, we will do a few examples. Example in the meaning, example as in we will be solving some questions. How can we take a question, apply its gain in that, take an input, apply the gain, and get our desired output, right? For example, I'll write an example, I'll show you, and then we will do the MATLAB models of those practical examples. Let's say practical examples. In the last class, we did these things. Since I've used the same copy, I can show you here. We basically did these things. This MATLAB model we had done. This is the block diagram. But in when we use this practically, there will be certain change. You will see those in today's class. Okay, let's say, for example, okay, reminder, I have checked your copies and I'll give you the feedback after the class. I have a lot to talk with you. Open loop control system. Let's say we have a question. Let us follow the question. The question is, we have an input of single phase AC supply whose value is 110 volts. Okay, we need 220 volt AC single phase supply. So how do we represent this? This is a question. This is a practical question, right? This is not some block diagram that we can just add something and do. This is a practical question. Our input is 120 volts. We need for our regular work, we need, let's say, our wall socket output, which is, let us say it is in this case 220 volts single phase AC supply. How do you cope with this problem? How do we arrange this problem while performing the MATLAB program? Since it's an open loop system, the number of blocks will be less, the number of elements used will be very, very less. The simple concept is the input is, input, when we will be putting in the MATLAB simulation, it is the reference input. The reference input is 110 volt single phase AC. Our desired output is 220 volt single phase AC. What will be the value of gain in this case? Juhi Kumari? एक मिनट Juhi Kumari. Juhi Kumari. Yes, sir. Value of gain क्या होगा इसका? If the input, our reference input is 110 volts, our output is 220 volts, gain कितना होगा?
मैं तुमको ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ ओपन लूप का। ये दिख रहा है? हाँ, this is 110 volts मान लो, this is दिख रहा है, this is 220 volts। ये सब छोड़ दो, ये ब्लॉक डायग्राम के लिए है। इन द मैटलैब प्रोग्रामिंग वी डू नॉट नीड दिस, इसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में। पहले यहाँ पे अगर गेन है, इसको कितना बढ़ाएंगे तो 220 होगा। मेरा इनपुट है 110, गेन का वैल्यू कितना होगा तब 220 होगा। जूही कुमारी, 110। हाँ, तो उसको यहाँ पे जी इक्वल टू कितना लिखेंगे, गेन का वैल्यू कितना लिखेंगे? 2। शाबाश, आता है तो बोलते क्यों नहीं? तुमको पूछा जाता है, जब तुमको पहले भी लास्ट सेमेस्टर में भी पूछता था, तुम चुप करके अगर आंसर गलत भी होता है तो बताओ। तुम इफ यू आर नॉट आंसरिंग आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ यू आर नोइंग इट और नॉट। तुम रेक्टिफाई किस चीज का करूंगा? गेन वैल्यू इज आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है? 220 by 110. Okay. Now, while performing this MATLAB simulation, मैं तुमको जैसा बोल रहा था, while doing these examples, we need these three things: input, a gain value, and an output. ये जो बीच में था, the thing that we had in between, that is this process, ये नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। ये बताओ तो क्यों चलेगा? दिस इज प्रोसेस और प्लांट और सिस्टम हम ब्लॉक डायग्राम में अभी का जो मान लो एग्जांपल कर रहे हैं, द एग्जांपल दैट वी आर शोइंग राइट नाउ, इनपुट वोल्टेज इज 110, 220 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज, वी आर यूजिंग अ गेन ऑफ 2, गेन वैल्यू ऑफ 2। यहाँ पर हम वो सिस्टम शो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों बताओ तो? एनीवन? हम सिर्फ यही करेंगे, यही प्लॉट करेंगे इसमें मैटलैब में, नथिंग मोर देन दिस। बताओ, बोलो जल्दी बोलो, करना पड़ेगा इसका आगे। एनीवन, एनी आइडिया? क्योंकि सर इसमें आउटपुट हमें सब पता है सर पहले से। करेक्ट। सिस्टम हमको मतलब सिस्टम कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब ब्लॉक डायग्राम इज लाइक एन एग्जांपल। हाँ, धनंजय कुछ बोल रहे थे? नो सर। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल का जगह दूसरा सिस्टम हो सकता है, इसलिए हम वहां पे एक सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिकल इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, सिस्टम वैसे ही होगा। वी जस्ट हैव टू डील विद दिस, सिंपल। अच्छा, जब मान लो कोई ब्लॉक डायग्राम, व्हेन यू आर यूजिंग मैटलैब, सिंस यू आर, अगर कुछ लोग किए हैं कुछ लोग नहीं किए हैं, टू क्रिएट ए न्यू मॉडल, जब मॉडल खोलते हो तुम, मैटलैब खोलते हो, तब एक माइंड में आइडिया करना पड़ता है कि हम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक। सो इट इज बेटर अकॉर्डिंग टू मी फॉर द बिगिनर्स, like who are practicing, who are in the initial stage of making block diagrams in MATLAB, I mean making circuit connections in MATLAB, it is better for them to draw like a blueprint समझते हो ना? जैसे कॉपी में तुम बना लिया, तुमको क्या चाहिए, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल हमको ये चाहिए, एक गेन वैल्यू आएगा, जैसे लास्ट दिन देखे थे, गेन वैल्यू आएगा ऐसे, उसको इनपुट में करेंगे। इनपुट मान लो मतलब इट विल बी अ सिग्नल, उसको मान लो सिंस ये सिंगल फेज एसी है, हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम कर रहे हैं, तो एक साइन वेव ले लो, साइन वेव ले लिए,
कनेक्ट किए, ये आएगा आउटपुट कहां पे चेक करते हैं, वी चेक द आउटपुट इन द स्कोप ब्लॉक। Now you have to understand something about scope. Scope is not only for the output. Scope is like क्या कहते हैं CRO DSO। यहाँ पे हम लोग ग्राफ देखते हैं, we can connect anything। ये जब कनेक्ट किए हैं, we are checking the graph of the output। हम इसको यहां से निकाल के ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमको इनपुट का वैल्यू दिखाएगा यहाँ पे, दिस विल शो द, जब इनपुट को कनेक्ट कर रहे हैं तो इनपुट का वैल्यू दिखाएगा, जब आउटपुट को कनेक्ट करेंगे आउटपुट का वैल्यू दिखाएगा। सिंपल, जैसे फॉर इनिशियली फॉर दिस आवर इनपुट इज 110 वोल्ट्स, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, द रिक्वायर्ड ग्राफ विल शो द एम्पलीट्यूड विल बी ऑफ 110 वोल्ट्स। सिंपल। और उसके बाद जब हम लोग गेन वैल्यू 2 पुट करेंगे इसके अंदर, when we be putting the gain value of 2, the required output showing in here will be 220 volts. Hence the graph will be like this, the graph will be like this। simple। एक ही ग्राफ में कलर चेंज रहेगा, there will be different colors will be used for the input voltage and different color will be used for the output voltage to represent। उसको हम ये भी कर सकते हैं, लेबलिंग भी कर सकते हैं, we can give a name for that too। ठीक है, उसको लेजेंड कहते हैं, दिखा दूंगा मैं। सिंपल कनेक्शन है इसका, तो सिंपल ही है। क्लोज्ड लूप कनेक्शन में यू विल सी डिफरेंट थिंग्स, कुछ नया चीज देखने को मिलेगा जब, क्योंकि मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं मैटलैब ऑन कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा। देखो तो मैटलैब का स्क्रीन आया है कि नहीं? Yes, sir. Okay, the same thing, these are the very simple things। we have a source, we have a gain, we have scope, we have only 3 things। gain मिल जाएगा तुमको, सॉरी पहले तो सोर्स है, सोर्स साइन वेव है, सिंपल सा बात है। साइन वेव सोर्स में आएगा, सोर्स कहाँ पे है, sources, we are using AC supply, therefore we are taking a sine wave here। simple, another sort of अच्छा दीचिका सिंह Yes, sir. तुम तो बोले थे तुमको तुम्हारा मैटलैब है, मैटलैब प्रैक्टिस किए थे लास्ट सेमेस्टर में। एक्चुअली सर मेरा मैटलैब ना लैपटॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा था, बहुत बार ट्राई किया बट हो नहीं रहा है। तो जिसके पास इंस्टॉल्ड है उससे हेल्प लिया है तुम? सर हेल्प सब यही बोल रहा है ना, नेटवर्क कनेक्ट करके करने के लिए। सर 50% इंस्टॉल होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है। बाकी सबका क्या यही प्रॉब्लम है? जिसका हो रहा है उसका बोलो, क्योंकि प्रॉब्लम किस चीज का हो तो जानना पड़ेगा। मेरा हो गया। यस सर। क्या है मेरा मेरा? तुम नाम बोलेगा तब ना, मेरा कौन है? सर गौरव कुमार गुप्ता। गौरव, तुम इसी के हो? ये सर इसी के। तो इसको बोल दो, इससे पूछ लेना किसी का इंस्टॉल करके करना। दूसरा का स्क्रीनशॉट लेके क्या फायदा? अभी कर रहा हूँ अगर स्क्रीनशॉट। सर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमको करना पड़ा। सर हम बहुत बार ट्राई कर चुके थे, इवन हम सर जियो नेटवर्क को भी कनेक्ट करके ट्राई किए बट हो ही नहीं रहा इंस्टॉल। करो, उपाय तो तुमको निकालना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम उसको बोल के क्या होगा? यस सर। इस सॉल्यूशन तो तुमको निकालना पड़ेगा ना, इंस्टॉल तुमको ही करना पड़ेगा ना, इसको समझो बात को। अच्छा ठीक है, ओके सर। जब किए हो तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि तुम लोग, सम ऑफ यू हैव लैपटॉप, सम ऑफ यू डोंट हैव लैपटॉप्स। ठीक है, इसके पास है वो यूज करो, यूज करके
इसको प्लॉट करना खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं तो सिर्फ देखोगे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, देखने से क्या हो जाएगा। जिसके पास है एटलीस्ट वो तो ट्राई करे, बाकी सब इसके पास नहीं है दे फॉलो द क्लास। कम से कम बाद में जब कभी तो आएगा, कभी तो स्कोप मिलेगा, चांस मिलेगा काम करने का। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ द स्कोप विल बी फिनिश्ड इन दिस क्लास ओनली, इन द lab only. It will be used in your further higher studies or any kind of, if you are going in good industries, you may use MATLAB programming. तब तो तुमको जानना पड़ेगा, you have to start from the scratch. Therefore, it is better if you practice it in any way from here on. तो सेट हो जाएगा जब, तो धीरे धीरे जैसे छोटा सा मॉडल दिखाया था मैंने, आज थोड़ा बढ़ेगा क्लोज लूप में, उसके बाद और बढ़ेगा। We can make bigger programs out of this. तुम लोग का हाथ सेट करना है पहले, छोटा छोटा सा धीरे धीरे हाथ सेट करना होगा, ठीक है। पहला सोर्स है, उसके बाद गेन इज इन कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स, गेन वैल्यू, दिस इज द गेन वैल्यू, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज स्कोप, स्कोप इज प्रेजेंट इन द सिंक। स्कोप, इसको साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखेगा अच्छा। Now since the EC students have done MATLAB for their signal system class, I hope they know some of the functions, maybe a lot of the functions. लेकिन अब मैं तुमको थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाऊंगा। चेंज करके मतलब कोई भी ब्लॉक का, for any block when we have to see the block parameters, basically called block parameters. So you can change the block parameters, the input value, output value, or anything, any property. We just have to go there and double click on this. Double click on this. I have double clicked on the sine wave. साइन वेव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देखो ये आया, ये हमारा इनपुट साइन वेव है। ब्लॉक पैरामीटर दिख रहा है? इज द ब्लॉक पैरामीटर विजिबल? यस सर। ओके, देखो डबल क्लिक करोगे, दिस इज द हेडिंग दैट विल कम, ब्लॉक पैरामीटर्स, किसका? साइन वेव का। इन द ब्लॉक पैरामीटर्स वी हैव एम्पलीट्यूड, दिस इज द इनपुट, आवर इनपुट वाज 110 वोल्ट्स, तो एम्पलीट्यूड को सीधा 110 110 वोल्ट्स कर दिए। नेक्स्ट इट्स अ सिंगल फेज एसी, सिंपल सा वास है सिंगल फेज एसी। देन वी हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड। कैन यू टेल मी कि रेडियन पर सेकेंड को यहाँ पे, जब रेडियन पर सेकेंड है यहाँ पे 50 हर्ट्ज कैसे लिखेंगे? एनीवन? बोलो तो, कोई किसी को आइडिया है कि नहीं? इट इज इन रेडियन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड में है। वी आर यूज्ड टू हर्ट्ज, वी यूज 50 हर्ट्ज, राइट? इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट हर्ट्ज इन हियर, हाउ टू यूज, क्या लिखेंगे बोलो? सर 2 म्यू होता है सर, यानी 100 पाई 2 पाई इनटू म्यू होता है, ओमेगा इक्वल्स टू। हाँ, तो बेसिकली आप 2 म्यू बोले पाई, कितने? म्यू कब बोला था मैं? इनटू म्यू सर। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज। नो सर, क्या नो सर? नो सर, उल्टा बोल दिया। 2 पाई इंटू 50, 100 पाई होगा सर। पूरा सुने हो तुम? 2 नो सर, पाई, फिर से रिपीट। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज। यस सर। 1 हर्ट्ज बोला मैंने, 50 नहीं बोला। सुना दिया? यस सर। 2 पाई इक्वल टू 1 हर्ट्ज ना, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज। अरे बोलो। यस सर। तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज होगा, तो 2 पाई इंटू 50 इक्वल टू 50 हर्ट्ज। 2 पाई 50, 2 इंटू पाई इंटू 50 बेसिकली। सही बोले तो तुम। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू पाई, वेट अ सेकंड, इंटू पाई इंटू 50, ठीक है?
और देयर विल बी वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग सैंपल टाइम चेंज करेंगे। सैंपल टाइम इसलिए चेंज करेंगे बिकॉज यू आर यूजिंग ऐसी सिग्नल ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है, 1/50, तो बहुत कम सैंपलिंग टाइम आएगा। यहाँ पे सैंपल टाइम विल बी टेकिंग इन माइक्रोसेकंड्स। उसको ऐसा लिखते हैं जैसे 10 to the power -6, इसको जैसे कैलकुलेटर में जैसे लिखते हैं 1e-6। अजीत कुमार दत्ता, यस सर। कॉपी लिखे थे उतना आधा अधूरा क्यों था? सर वो एक पेज छूट गया था सर। आधा अधूरा था, तुम लोग को करेक्शन करने देते हैं, तुम मतलब जमा कर दिया, हो गया खत्म क्या? स्कैन नहीं लिए पाए सर, हमको लगा वहां पे जब एडिट कर रहे थे तब छूट गया। तो मेरा लैब में ये सब नहीं होता है। मेरे लैब में देता हूँ तुमको, अगर मैं तुमको रिटर्न करता हूँ नंबर के नीचे कम नंबर देखो विद करेक्शन दैट यू हैव टू मेक, यू हैव टू रेक्टिफाई एंड सबमिट अगेन। ऐसा नहीं कि कॉपी छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए, घुमा के नंबर देखना। जो गलती किया है, एनीवन हु हैज डन एनी काइंड ऑफ मिस्टेक दे हैव गॉट 0, करेक्शन करोगे पूरा नंबर दे दूंगा, बट यू हैव टू रेक्टिफाई। ऐसा नहीं कि कॉपी दे दिया काम खत्म मेरा, नहीं, करेक्शन कर लेना, करेक्शन करने फिर से दे देना। ओके, दिस इज द सैम्पलिंग टाइम। अब जब मॉडलिंग कर रहे हो, मैटलैब से कोई मॉडल बना रहे हो, एक बात याद रखनी, देयर आर 3 प्लेसेस बेसिकली, देयर आर बेसिकली 3 प्लेसेस where you have to change the time if you are taking this sample time into account। जब तुम कोई भी टाइमिंग में हाथ लगा रहे हो, देयर आर 3 प्लेसेस where you have to change this timing। एक हो गया इनपुट में, अप्लाई, ओके, इनपुट का काम खत्म। अच्छा, गेन था मेरा फॉर दिस, आवर रिक्वायर्ड गेन वाज 1 है, 2 करेंगे, रिक्वायर्ड गेन वाज 2, इसका हो गया काम, अप्लाई, ओके। इनपुट का टाइमिंग फॉर अ फिक्स्ड पैरामीटर, हम फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड वी आर चेकिंग द टाइम, फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड विल आल्सो बी चेकिंग द आउटपुट, क्योंकि इसका टाइमिंग अलग होगा, उसका टाइम, इसका सैंपल टाइम अलग होगा, इसका सैंपल टाइम अलग होगा, तो कहां से चलेगा? तो इसको डबल क्लिक करेंगे, स्कोप का कुछ प्रॉपर्टी आता है, ग्राफ ही आएगा, वैसे ब्लॉक पैरामीटर नहीं आएगा, दिस इज नॉट अ ब्लॉक, देयरफॉर वी विल नॉट सी द ब्लॉक, वी विल सी द ग्राफ। यहां पे क्लिक ऑन दिस, देखो कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ स्कोप, स्कोप का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी होता है, वो सब विदाउट स्कोप एवरीथिंग एल्स इज ब्लॉक, देयरफॉर ब्लॉक पैरामीटर, स्कोप इज नॉट अ ब्लॉक, स्कोप इज द ग्राफ, इनपुट आउटपुट सी कभी, देयरफॉर since we are configuring something, therefore configuration sample time is also written here, we will use the same sample time, क्योंकि इनपुट का जितना टाइमिंग है उसके अंदर जितना the number of sine waves we will get the same, यहाँ पे भी दिखना चाहिए, इनपुट का कम है आउटपुट का ज्यादा है, नहीं है, सिंपल सैंपल टाइम यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे 1e-6, 10 to the power -6, ठीक, अप्लाई, ओके। दिस इज द सेकंड प्लेस, ये एक हो गया इनपुट का, एक हो गया आउटपुट का। तीसरा, जहां पे जिस प्लेटफॉर्म में द प्रोग्राम इज रनिंग, तीसरा स्टॉप टाइम। नाउ वी आर यूजिंग ए टाइम पीरियड ऑफ 10 to the power -6, हम स्टॉप टाइम अगर 10 सेकंड करेंगे, इट इज वे टू मच, तो इसको हम कम कर देंगे, 10 to the power -6 इज वेरी वेरी लेस, देयरफॉर द टोटल ग्राफ वी कैन टेक, यू कैन इजीली टेक इट 1 सेकंड, 1 सेकंड में छोड़ दो, वी कैन इजीली टेक इट 0.1 सेकंड, ठीक है। Now we will connect this, ये हम कर रहे हैं, this is for the first question, which we have the input value of 110 volts, output value, it is required value is 224, therefore we are using the gain of 2। अब इसको रन करेंगे, रन करने के बाद यहाँ पे और एक चेंज करूंगा मैं, पहले रन ये देख लो, सॉरी मैं ये वाला कनेक्ट किया नहीं था, सॉरी, वो सिर्फ आउटपुट का दिखा रहा था, तो हाँ, क्योंकि हम आउटपुट के लेंगे, इनपुट का की वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स, दिस इज अ पोर्ट, यहाँ पे एक और होगा, राइट क्लिक ऑन द स्कोप, सिग्नल्स एंड पोर्ट्स, नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स, देखो 1 है, 1 पे टिक है, वी नीड 2 कर दिया, देखो 2 आ गया, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं, तो दिस इज द आउटपुट पोर्ट,
दिस इज द इनपुट पोर्ट। अच्छा एक बात देखना, यहाँ पे कोई आउटपुट वायरिंग है नहीं, जैसे इसको डिलीट करो, यहाँ पे देखो आउटपुट शो कर रहा है। ये जब तुम लोग जो लोग के पास, जिन लोगों के पास मैटलब नहीं हो, वो लोग जब इनिशियल यूज करेंगे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा, या थोड़ा मोड़ा मतलब कनेक्शन का समझ जाओगे। फिर मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे आउटपुट पुट दिखाएगा ना तो वहां से खींच सकते हो ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कोई आउटपुट पुट नहीं है, यू कैन नॉट पुट समथिंग फ्रॉम हियर, ऐसा है। ये छोटा छोटा चीज है कनेक्शन। यहाँ से जब कनेक्ट करोगे तो यहाँ से खींच लेना, ऐसे क्लिक ऑन दिस एंड जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, हो गया काम, ठीक है। रन द सिस्टम अगेन, डबल क्लिक ऑन दिस, देखो इनपुट 110 volts, आउटपुट द गेन इंक्रीजेस एंड द वैल्यू विल बी 220 volts। इसको हम लेवलिंग भी कर सकते हैं, पहले तो ये सब आएगा, सब स्केल ठीक कर लेना, माइन्यूट चेंज आता है, ठीक है। बड़ा ग्राफ आएगा जब, देन यू विल बी एबल टू सी। अच्छा और यहाँ पे व्यू है, व्यू में लेजेंड एक चीज होता है, देखो sine wave, yellow one is the sine wave, sine wave means our input and this is the gain, basically the output after the gain, ठीक है। इसका हम नाम चेंज भी कर सकते हैं साइन वेव का। ये साइन वेव है, यहाँ पर तुम लिख दो इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे तुम इसका लिख दो आउटपुट वोल्टेज। अच्छा इसका ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ ब्लॉक, ये जस्ट दिस इज फॉर अ ग्राफ ओनली, बस। अब इनपुट भी आउटपुट वोल्टेज लिख दिया, रन करो, रन करेंगे, डबल क्लिक ऑन द स्कोप, देखो द yellow one is the input voltage, blue one is the output voltage, yellow one input voltage, blue one output voltage, simple। we can see the input and output simultaneously, ये हो गया सिंपल। अब मैं इसको पैरामीटर में, सॉरी जो इनपुट था मेरा, इसमें इनपुट वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज करूंगा। ये बताओ मुझको, ये जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 110 है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड और द आरएमएस वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड? क्वेश्चन के अनुसार तो हाँ मैक्सिमम है सर। क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग हाँ को बोलो, क्या बोलो बोलो, प्रोनाउंस तो मैटरनेस बजो, अपी को बोलो क्या बोल रहा था सर, लेकिन 10 जो दिया हुआ वो तो आरएमएस दिया, लेकिन हम लोग ये वीएम क्यों लिए 110? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम है कि आरएमएस है, क्या बोल रहा हूँ मैं? 110 जो शो कर रहा है मैक्सिमम है या आरएमएस है? मैक्सिमम। मैक्सिमम, यस। इसका एम्पलीट्यूड अगर 110 हो तो इसका जब आरएमएस निकालेंगे तो कितना होगा? 110 into root 2, into root 2, 110 by root 2। Vmax equal to RMS into root 2 ना? Vm equal to RMS into root 2 ना? 50 into root 2। Yes sir। 50 into root 2, हाँ 50 No into sir, root 2. 110 into root 2। RMS equal to Vm by root 2। तो प्रणव तो मैटरनेस लिए है? प्रणव? यस सर। यस भेज देना, भेज देना, भेज देना, यहाँ चेंज करूंगा। कितना लिखे बोलो? सर 50 root 2। 50 root 2, 50 इंटू ऐसे एस्ट्रिक इंटू, यहाँ पे रूट लिखता है ऐसे, देखो एस क्यू आर टी, ये भी कर सकते हैं, रूट 2 भी लिख सकते हैं, अप्लाई, ओके।
कितना है 50 into root 2 कितना है, कम आया है ना, बोलो। Yes, sir. हेलो 100 into root 2 करना पड़ेगा RMS वैल्यू। Vmax निकालेंगे, ठीक है, इसी को तुमको समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। वी आर यूजिंग अ वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर, है ना। सो सही कर रहा था, हम लोग को Vmax निकालना पड़ेगा। therefore apply, okay, then run the program, ठीक है, समझ में आया अब? हेलो Yes, sir. ठीक है। RMS value was given root 2 multiply करो ये, therefore we will be getting the Vmax value। इसका तुमको मैं और जूम करके दिखा देता हूँ एक चीज का वैल्यू कितना है। रूट 2 मतलब 1.414 into 100 कितना आएगा, 141 140 141। देखो প্লাস্টিকের টিপি তো ভাবি প্লাস্টিকের টিপি হ্যাঁ সিলেক্ট হচ্ছে না হ্যাঁ স্ক্রল করে দেখো হ্যাঁ 155.56 इसी तरह पूछा सर। तो इसको देखो, देखो आ रहा है। अब इसको जितना जूम करेंगे यहाँ पे ऐसा आएगा, देखो अराउंड 150 है, देख लाइन आ गया है बीच में डिस्टर्ब कर रहा है।